السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور بدلتے موسم کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبرنامے کا آغاز ہیڈ لائن سے۔ میں مریم نواز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ حکومت صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ خوشحالی کی خاطر انجام دوں گی۔ مریم نواز شریف 220 ووٹ لے کر ملک کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب۔ گورنر ہاؤس لاہور میں تقریب علف برداری۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف، محمد شہباز شریف، ارکان اسمبلی اور سیاسی رہنماؤں کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ آفس آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ پولیس کے چاقو چبند دستے کی سلامی۔ امن و امان اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کنٹرول کرنے سے متعلق اجلاسوں میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کی ترقی کے لیے روڈ میپ پیش کر دیا۔ تعلیم، صحت، آئی ٹی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں پر خصوصی توجہ مرکوز ہوگی۔ ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کا اعلان۔ دشوار گزار علاقوں کے لیے ایئر ایمبولینس سروس شروع ہوگی۔ نوجوانوں کے لیے 25,000 روپے ماہانہ انٹرنشپ وظیفہ۔ دانش اسکول نظام کو وسعت دی جائے گی۔ کاروباری طبقے کے لیے ون ونڈو آپریشن۔ 1 لاکھ گھروں سے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ میرے دل میں انتقام اور بدلے کا کوئی جذبہ نہیں، یکساں ترقی کی پالیسی پر عمل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب اسمبلی میں پہلا خطاب۔ مراد علی شاہ 112 ووٹ لے کر تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ منتخب۔ مد مقابل ایم کیو ایم کے علی خورشیدی کو 36 ووٹ ملے۔ حلف برداری کل ہوگی۔ ملکی سالمیت، ترقی اور استحکام اولین ترجیح ہے۔ کوشش ہوگی کہ سب کو ساتھ لے کر چلوں۔ مثبت تنقید کا خیر مقدم کریں گے۔ عوام سے کیے وعدے پورے کریں گے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا ایوان میں اظہار خیال۔ الیکشن کے بعد 21 روز میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ضروری ہے۔ نامکمل اسمبلی کا تصور آئین میں نہیں۔ سابق وفاقی وزیر قانون اعظم رضی تارڑ کی گفتگو۔ آئین میں واضح ہے کہ صدر نے ہر صورت اجلاس بلانا ہے۔ جمہوری عمل کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان۔ نگراں حکومت نے سرکاری اداروں کا خسارہ کم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ نجکاری سمیت مزید اصلاحات کا فیصلہ نو منتخب حکومت کرے گی۔ سرکاری ملکیتی اداروں کے نقصانات ختم کرنے سے کسی کو اختلاف نہیں۔ اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان۔ انڈیکس میں 490 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 63,305 پر بند۔ 45 کروڑ 28 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، مزید 90 فلسطینی شہید، 164 زخمی۔ خان یونس میں مزاحمت کاروں کے حملے میں 15 سے ہونے فوجی مارے گئے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا ایک بار پھر غزہ میں غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ فلسطینی وزیراعظم مستعفی ہو گئے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی اور فاقہ کشی کی وجہ سے عہدہ چھوڑنے پر مجبور ہوں، محمد شتیہ کا اعلان۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ صورتحال انتہائی سنگین۔ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں متعدد نوجوان گرفتار۔ جامع مسجد سری نگر کی بندش۔ میر وائس عمر فاروق مسلسل نظر بند۔ حریت قیادت کی ظالمانہ اقدام کی شدید مذمت۔
भारत में किसानों के एहतजाज का 13वां रोज, पुलिस के हाथों नौजवान शुभकरण सिंह की मौत के बाद कशीदगी में इजाफा। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों से भारतीय फौजी भी नाला, किसान मार्च का हिस्सा बनने लगे। मुल्क भर में 7 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला में 3 से 9 मार्च तक मुहिम चलाई जाएगी। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। दुनिया को खुसूसी अफराद की शानदार सलाहियतों से मुतारिफ करवाया। खिलाड़ियों की मुतासर कुन कारकर्दगी काबिल तारीफ है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ब्लाइंड क्रिकेट टीम से गुफ्तगू। और सऊदी प्रो फुटबॉल लीग क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अन नसर की अशबाब के खिलाफ 2 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी। लीग टेबल पर अन नसर 52 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, अल हिलाल की टीम 56 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि मरियम नवाज शरीफ ने मुल्क की तारीख की पहली खातून वजीर आला की जिम्मेदारियां संभाल ली। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। तफसील बता रही हैं सिद्रा आसिम। गवर्नर हाउस के सरसब्ज लॉन में होने वाली सादा और पुरवकार तकरीब में नौमुंतखब वजीर आला हल्फ लेने पहुंची तो उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने मरियम नवाज से वजारत आला के ओहदे का हल्फ लिया। मैं मरियम नवाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी व वफादार रहूंगी। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूंगी। हल्फ उठाने के बाद वजीर आला पंजाब अपने वालिद नवाज शरीफ से गले मिली और उनसे प्यार लिया। इस मौका पर फतेह जज्बात से उनकी आंखें नम हो गईं। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खुद जाकर पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया और स्टेज पर उनका हाथ बुलंद किया। तकरीब में शरीक पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि वजारत आला के लिए मरियम नवाज का इंतखाब बेहतरीन है और जिस तरह उन्होंने बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर कलीदी किरदार अदा किया वो सूबे के इंतजामी उमूर को भी बेहतर अंदाज में चलाएंगी। न्यू जनरेशन इज टेकिंग ओवर विद विगर, नई सोच है, नए जज्बात हैं, एनर्जेटिक हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अच्छी हैं और हमें बहुत तवक्कुआत है इंशाल्लाह कि अच्छा परफॉर्म। नए दौर का आगाज़ हुआ है। एक खातून वज़ीर आला बनी है, उनकी एक बड़ा मैं समझता हूँ कि साथ उनके बेशुमार एक कीमती सरमाया है उनके वालिद के एक्सपीरियंस के, उनके चचा के एक्सपीरियंस का। दुआ भी है और उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह मरियम बीबी पंजाब में वाज़ह तब्दीली लाएंगी और शहबाज साहब के काम को आगे बढ़ाएंगी और पंजाब आप तरक्की करता हुआ देखेंगे। मरियम नवाज़ के लिए यकीनन ये एक नई बिगिनिंग है। प्रैक्टिकल सियासत के अंदर तो वो हैं एक अरसे से और मैंने देखा है करीब रहते हुए उनके। शी इज़ कम्पिटेंट, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती हैं। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सऊदी अरब, ईरान और दीगर सफारतकारों ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि सरकर्दा सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अपने दफ्तर पहुंची तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की। वजीर आला के इंतखाब से पंजाब में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका है। तवक्को है कि नई हुकूमत पंजाब में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए सूबे की तरक्की के लिए मुकम्मल रोड मैप पेश किया। तमाम इलाकों की यकसा तरक्की की पॉलिसी पर अमल होगा। तालीम, सेहत, IT और बुनियादी ढांचे के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मज़ीद तफसील बता रही हैं फरहाना खान।
पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सूबे के 12 करोड़ से जायद अवाम की वजीर आला हूँ। अवाम की मुश्किलात का अंदाजा है, 8 से ही मंशूर पर अमल दरामद शुरू होगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों की जिंदगी में बेहतरी लाना मेरी तरजीह है। मेरिट पर आने वाले तालिब इल्मों को आला तालीम के लिए वसाइल फराहम करेंगे, जबकि नौजवानों के लिए यूथ लोन प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। हर तरह की जो यूथ है उसको केटर करने के लिए मैंने जो अपने प्रोग्राम्स हैं वो बनाए हैं। उसमें हमारे इंटरेस्ट फ्री लोन्स शामिल हैं, उसके अंदर हमारा यूथ की ट्रेनिंग स्कीम्स शामिल हैं, उसमें स्मॉल बिजनेस लोन स्कीम शामिल है, उसमें यूथ लैपटॉप स्कीम्स शामिल हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को और ज़्यादा बढ़ाएं और पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसमें कम से कम जो एक आपके पास इंटर्न आता है उसकी 25,000 महीने की जो है वो होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हैं वो हम स्टूडेंट्स को भी देंगे और नौजवानों को भी देंगे। वो हमने एक प्लान बना लिया है इंशाल्लाह। मेरा ये दिल करता है कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक दानिश स्कूल हो। मरियम नवाज ने कहा कि कारोबारी अफराद को सूबे में हर मुमकिन सहूलत देंगे। इस सिलसिले में ताजिरों को 1 विंडो सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया और कहा कि सेहत के शोबे में भी इनकलाबी इकदामात किए जाएंगे। मेरा विजन है कि पंजाब को हम इकोनॉमिक हब, बिजनेस का हब बनाएं, बजाय इसके कि हम कैंसर हॉस्पिटल्स अलग से बनाएं, लिवर एंड किडनी हॉस्पिटल्स अलग से बनाएं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो एक वहाँ पर एक मेजर हॉस्पिटल है उसमें यूनिट्स बने, कैंसर का यूनिट भी बने, उसके अंदर जो हमारा किडनी और लिवर के यूनिट्स भी बने, और उसके अंदर जो भी जिस स्पेशल चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स भी बने। वो एक बहुत ज़रूरत है आवाम की। विद इन 12 वीक्स हम पाकिस्तान की पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए रमजान अल मुबारक में सस्ते बाजार लगाए जाएंगे। मुस्तहिक अफराद को रिलीफ उनकी दहलीज पर पहुँचाया जाएगा। उन्होंने ज़राअत के हवाले से भी इनकलाबी इकदामात का ऐलान किया। रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगेबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा। सस्ते रमज़ान बाजार भी लगाएंगे, उनकी भी इफेक्टिव मॉनिटरिंग शुरू होगी। मरियम नवाज ने कहा कि 1 लाख घरों से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ता पंजाब मेरा ख्वाब है, जबकि डिजिटल पंजाब के तहत सूबे में 5 IT अजला बनाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि फ्री वाईफाई का पायलट प्रोजेक्ट लाहौर से शुरू करेंगे, जबकि E-लाइब्रेरीज का मंसूबा दोबारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की तमाम सड़कों को बेहतरीन अंदाज में तामीर किया जाएगा। हर डिविजन्स में मेट्रो बस सर्विस का आगाज किया जाएगा, जबकि पंजाब के 18 शहरों में सेफ सिटी मंसूबे का आगाज किया जाएगा। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पंजाब असेंबली में होने वाली वोटिंग में मरियम नवाज 220 वोट्स लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हुई। रिपोर्ट कर रही हैं हुमा सदफ। पंजाब के नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असेंबली का इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में हुआ। वज़ीर आला के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब खान के दरमियान मुकाबला हुआ। वोटिंग के दौरान मरियम नवाज 220 वोट लेकर पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो गयी। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। अब मैं नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो लीडर ऑफ हाउस की सीट पर तशरीफ़ लाएं। कायदे ऐवान मुंतखब होने पर ऐवान से अपने पहले खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पूरे ऐवान की वज़ीर आला हूँ। मेरे दफ्तर और चैम्बर के दरवाजे अपोजिशन के लिए भी खुले हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ऐवान में होना सियासी कारकुनों की खिदमत का एतराफ है। वालिदा का जिक्र करते हुए मरियम नवाज की आंखें नम हो गईं। ये आपसे वादा करती हूँ कि मैं जितनी वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून के लिए हूँ उतनी वज़ीर आला मैं आपके लिए भी हूँ, और आप सबके साथ मिलके एक ड्रीम टीम की तरह मैं काम करना चाहती हूँ। मेरे दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। हर उस पाकिस्तान की बेटी का एजाज़ है, हर उस पाकिस्तान की बहन का एजाज़ है, हर माँ का एजाज़ है कि आज कुर्सी पे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला खड़ी हैं।
سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر اسمبلی کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بتایا کہ آئین کے مطابق انتخابی عمل کے دوران پوائنٹ آف آرڈر پر بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سنی اتحاد کونسل نے وزیر اعلیٰ کی انتخابی عمل میں شرکت نہیں کی۔ آج پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا ایک اہم دن ہے جب پہلی بار کسی خاتون کو وزارت اعلیٰ کے لیے منتخب کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ وہ بلا سیاسی تفریق عوامی خدمت کو اپنا شعار بنائیں گی۔ ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد شہباز شریف نے مریم نواز کو وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا کہ وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے صوبے کی ترقی میں فعال کردار ادا کریں گی۔ ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ مریم نواز شریف صوبے کی ترقی، گڈ گورننس اور عوامی خدمت کا منشور لے کر میدان میں اتری ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی خدمت اور فلاح و بہبود کے لیے دن رات ایک کر دیں گی۔ کچھ بات کرتے ہیں سندھ کی، جہاں پیپلز پارٹی کے سید مراد علی شاہ 112 ووٹس لے کر تیسری بار سندھ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ حلف برداری کی تقریب کل ہوگی۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے نو منتخب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملکی سالمیت، استحکام اور عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہوگی، مثبت تنقید کا خیر مقدم کریں گے۔ عائشہ آفرین کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے آج ووٹنگ ہوئی، جس میں ارکان اسمبلی نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ایوان میں سید مراد علی شاہ نے 112 ووٹ جبکہ ان کے مخالف MQM پاکستان کے علی خورشیدی نے 36 ووٹ حاصل کیے۔ تیسری بار منتخب ہونے کے بعد سندھ اسمبلی سے اپنے خطاب میں سندھ کے منتخب وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ عوام کی خدمت اور ان کے مسائل حل کرنا میری ذمہ داری ہے، جبکہ قیادت نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پہلے سے بڑھ کر عوام کی خدمت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایوان میں سب کو ساتھ لے کر چلنا اور عوام کے مسائل کو حل کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں دونوں طرف کو ایسے لے جاؤں ساتھ کہ میں فرق نہ رکھوں، اور انشاءاللہ تعالی اپنے کام سے میں چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے دوست ہوں، چاہے ہماری جماعت اسلامی کے بھائی ہوں، میں چاہوں گا، ہم سب یہ چاہیں گے کہ آپ ایک مثبت کردار ادا کریں، اس اسمبلی کی پروسیڈنگز میں آپ باقاعدہ حصہ لیں، کنٹریبیوٹ کریں، اور سارے دوست تنقید سے کبھی نہیں ڈرتے۔ تنقید آپ نہیں کریں گے تو ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ تو اگر آپ ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے لیکن ایک مثبت طریقے سے کریں تاکہ ہم وہ سنیں بھی۔ اس سے پہلے سندھ اسمبلی کا اجلاس نو منتخب اسپیکر اویس قادر شاہ کی صدارت میں شروع ہوا۔ اجلاس میں اسپیکر اویس قادر شاہ نے وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے اوپن بیلٹ ووٹنگ کے ذریعے انتخاب کروایا۔ ووٹنگ کے بعد اسپیکر نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے نو منتخب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو مبارکباد پیش کی۔ It's an honor for me to declare Honorable Member Sayyid Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ سندھ کی تقریب حلف برداری کل گورنر ہاؤس کراچی میں ہوگی۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ سندھ کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سیاست میں نمایاں مقام رکھتے ہیں اور تیسری بار وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھال رہے ہیں۔ سید مراد علی شاہ کی شخصیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کراچی سے سہیل جمالی کی یہ رپورٹ۔ سندھ میں تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بننے والے سید مراد علی شاہ کو سیاست ورثے میں ملی۔ ان کے والد سید عبداللہ شاہ 1990 کی دہائی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے۔ 1962 میں کراچی میں پیدا ہونے والے سید مراد علی شاہ نے سینٹ پیٹرک اسکول سے میٹرک، ڈی جے سائنس کالج سے انٹر اور NED انجینئرنگ یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ میں گریجویشن کیا۔ اسکالرشپ پر امریکہ گئے اور کیلیفورنیا کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے اسٹرکچرل انجینئرنگ اور اکنامک سسٹمز میں 2 ماسٹرز کیے۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد وطن واپسی پر واپڈا، حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، پورٹ قاسم اور سٹی بینک میں خدمات انجام دیں۔ 2002 میں کوچہ سیاست میں آئے اور اسی برس دادو سہون سے رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے، جس کے بعد عوام نے انہیں ہر انتخاب میں صوبائی اسمبلی میں پہنچایا۔ سید قائم علی شاہ کی وزارت اعلیٰ میں وزارت آبپاشی، توانائی اور وزارت خزانہ کے قلمدان انہیں سونپے گئے۔ صوبے کے عوام سید مراد علی شاہ سے بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ سندھ کی ترقی کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत में लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें अमन अमान की सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इस्लाहात, जदीद आलात, टेक्नोलॉजी और तरबियत से पुलिस को अवामी खिदमत फोर्स बनाएंगे। उन्होंने कहा कि खवातीन, बच्चों और अक़लियतों पर तशद्दुद और बेहुरमती हमारी हुकूमत की रेड लाइन है। रिश्वतखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और मेरिट की पॉलिसी है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। मरियम नवाज ने कहा कि कानून के मुताबिक FIR का फौरी इंदराज होगा। डिजिटल और IT निज़ाम का इस्तेमाल मज़ीद बेहतर बनाएंगे। प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में खामियां दूर की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने टेक्सला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का सख्त नोटिस देते हुए खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, सिर्फ मेरिट और इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि थानों की शक्ल सूरत बदलना काफ़ी नहीं, रवैये बदलना होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि सेफ सिटी अथॉरिटी का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में शालीमार पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम की दी जाने वाली सहूलतों और तरीक़ाकार के बारे में दरियाफ्त किया। उन्हें फ्रंट डेस्क के बारे में आगाह किया गया। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर पर वज़ीर आला के हमरा थे। उन्होंने हवालात में बनकैदियों से बातचीत की। मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस सिस्टम से मुतालिक वादे हर सूरत पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि अच्छे पुलिस अफसरों की कदर करते हैं, रिश्वत का कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कीमतें कंट्रोल करने के लिए पायदार इक़दामात की हिदायत करते हुए फौरी प्लान तलब कर लिया है। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि कीमतों की निगरानी के लिए 5 रोज में बाकायदा महकमा कायम किया जाए। मरियम नवाज ने तलब और रसद के निज़ाम की निगरानी की हिदायत करते हुए कहा कि सूबे में प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा कानूनी मैकेनिज्म मौजूद नहीं, आर्थिक इक़दामात काफ़ी नहीं। गिरां फरोशी के खात्मे के लिए पायदार निज़ाम वज़ा किया जाए। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि फलों, सब्जियों और खाने पीने की दूसरी अशिया के दर कंट्रोल किए जाएं और गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाजरीन, 24 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल है। इन अरकान में खवातीन और अकलियतों के लिए मखसूस नशिस्तें कितनी हैं और चारों सूबों से कितने अरकान होते हैं, ये सब तफसील बता रहे हैं अरसलान असद अपनी इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली का ऐवान पहले 342 अरकान पर मुश्तमिल होता था, ताहम साबिक फाटा के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम होने से फाटा के लिए मुख्तस 6 नशिस्तें अब खत्म हो चुकी हैं। इसलिए अब कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल है। इनमें खवातीन के लिए मजमूई तौर पर 60 जबकि गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए 10 नशिस्तें मुख्तस हैं। अब आते हैं कि किस सूबे से कितने अरकान कौमी असम्बली का हिस्सा बनते हैं और किस सूबे के हिस्से में खवातीन की कितनी मखसूस नशिस्तें आती हैं। आबादी के हवाले से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब से 141 अरकान अवाम के वोटों से बरह रास्त मुंतखब होकर कौमी असम्बली का हिस्सा बनते हैं, जबकि पंजाब से मुख्तलिफ सियासी जमातों की 32 खवातीन भी कौमी असम्बली का ऐवान का हिस्सा बनती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के लिए 16 जनरल नशिस्तें और 4 खवातीन की नशिस्तें, खैबर पख्तूनख्वा से 45 जनरल और खवातीन की 10 नशिस्तें, सिंध से 41 जनरल और 14 खवातीन के लिए मुख्तस नशिस्तें हैं, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत के लिए कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। हर 3.5 जनरल नशिस्तों पर किसी भी सियासी जमात को खवातीन के लिए मुख्तस एक नशिस्त इलाट होती है, जिसके नतीजे में कोई भी खातून बगैर इलेक्शन के कौमी असम्बली के रुकन बन जाती हैं। नई कौमी असम्बली के इजलास के पहले रोज मौजूदा स्पीकर नए मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे, जबकि दूसरे रोज नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। तीसरे रोज कायदे अवान यानी वज़ीर आज़म के इंतखाब का मरहला आएगा। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए 336 के अवान में 169 वोट हासिल करना जरूरी है। मौजूदा असम्बली में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर 3 जमातों के अरकान को मिलाकर ये तादाद 207 तक पहुंच जाती है। इस तरह इन जमातों के मुतफ़िका उम्मीदवार बआसानी वज़ारत उज़्मा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे संभालेंगे। अरसलान सदकटखेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इलेक्शन के बाद 21 रोज में कौमी असम्बली का इजलास होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नामुकम्मल असम्बली का तसव्वुर आइन में नहीं है। पूरे आइन में कहीं नहीं लिखा कि रिजर्व सीट्स जो है अगर उन पे कुछ परसेंटेज जो है वो नोटिफाई नहीं होती तो असम्बली नामुकम्मल है। नामुकम्मल असम्बली का कोई कॉन्सेप्ट ना आइन में है ना असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है। अगर ये बात होती तो जब 146 अरकान इस्तीफा दे के स्पीकर की रूलिंग लेके चले गए थे 2022 अप्रैल में, तो नए स्पीकर का इंतखाब भी ना होता, नए कायदे अवान वज़ीर आज़म का इंतखाब भी ना होता।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी माहौल को पुरअमन रखना सबकी जिम्मेदारी है, जमहूरी अमल को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली इजलास बुलाने के लिए आइन में तरीक़ाकार मौजूद है। आइन बिल्कुल वाज़ेह है, 91(2) आप देख लें क्या कहता है कि 21 दिन में बुलाना है, हर हाल में सेशन, वोटिंग होनी है प्राइम मिनिस्टर की 169 की मेजॉरिटी पर और आगे बढ़ना है। तो इसमें कोई लचक नहीं है और फिर वो आइन शिकनी के क्यों मुरतब होने चाहते हैं। हम मुंतज़िर हैं अब कि प्रोसेस आगे चले जमहूरी और आइनी। कराची में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुल्की मसाइल का हल कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी में है। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना गैर आइनी है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर इजलास को डिले कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आए। इसी तरीके से जिस तरीके से पीटीआई की टॉप लीडरशिप चाहती है कि वो आईएमएफ को ख़त लिखे और उनको ये कहे कि जी पाकिस्तान के साथ जो मुआहदे हैं या लोन्स हों, जो कर्जा जाते वो ना दिए जाएं, तो ये अगर आप इन सबको कनेक्ट करेंगे तो दोनों का मकसद पार्टी एक ही है और लोग दो हैं। एक सदर पाकिस्तान है जो कि एक बहुत बड़ा आइनी ओहदा है, मुल्क का बहुत मोतबर आइनी ओहदा है, और दूसरा शख्स जो कि वज़ीर आज़म रह चुका है, इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है। वो दोनों मिलकर जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। पार्लिमानी उमूर के निगरान वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने ऐवान बाला से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने सरकारी मिल्कियती इदारों के खसारे में कमी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। इन सरकारी इदारों के निजकारी समेत मज़ीद इस्लाहात का फैसला नौ मुंतखब हुकूमत करेगी। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में होने वाले इजलास में सेनेटर मुश्ताक अहमद की तहरीक पर बहस समेटते हुए पार्लिमानी अमूर के निगरान वजीर मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि साबका और मौजूदा हुकूमत ने सरकारी इदारों के हवाले से बहुत सी इस्लाहात की हैं। मुख्तलिफ सरकारी इदारों में इस्लाहात के लिए उनके कवानीन में भी तरमीम की गई है। 200 से जायद स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं जिनमें ज़्यादातर पावर, पेट्रोलियम, फाइनेंस, कम्युनिकेशन इनसे ताल्लुक़ रखते हैं। सरकारी तहवील के इदारे हैं जी, इनके नुकसानात कैसे ख़त्म किए जाएं इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की राय मुख्तलिफ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि निजकारी ही एक तरियाक है इस सारे मसले का, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अगर पेशावराना मैनेजमेंट बोर्ड बनेंगे और कोई प्रोफेशनल तरीका होगा तो शायद ये ख़त्म हो जाएं। ये फ़ैसला ऐवान और मुंतखब हुकूमत ने करना है। निगरान वजीर मुर्तजा सोलंकी का कहना था कि बच्चों की तालीम से मुतालिक पूरे मुल्क में 25 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर किया गया है। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद बच्चों की तालीम सूबाई मामला है। ग्रेजुएशन के निसाब से मुतालिया पाकिस्तान को खत्म करने के मामले का सेनेट ने नोटिस ले लिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद की तहरीक पर बहस समेटते हुए पार्लिमानी अमूर के वजीर ने ऐवान को बताया कि HEC ने मुतालिया पाकिस्तान समेत किसी मजमून को खत्म या तब्दील करने का फैसला नहीं किया। सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि कौमी असम्बली का इब्तदाई इजलास बुलाने के हवाले से कानून वाज़ेह है। ऐवान ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल, मजरूब अफराद तरमीमी बिल, अज़दवाज ईसाइयाँ तरमीमी बिल, फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज बिल, ईजमेंट्स तरमीमी बिल और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बिल 2023 को मंजूर कर लिया। सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। इंडेक्स 490 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 63,305 पर बंद हुआ। मजीद तफसील बताएंगे हसन नासिर से। देखिए, सिंध और पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब सियासी और जमहूरी अमल का एहसन अंदाज से तकमील के मराहिल की जानिब गामजन होने और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के असरात मार्केट पर पड़ रहे हैं और आज सुबह मार्केट 700 पॉइंट्स प्लस रही और 63,000 की नफसियाती हद को न सिर्फ एक बार फिर अबूर किया बल्कि कारोबारी दिन के अख्ताम पर इसे बरकरार भी रखा। माहिरीन का कहना है कि जमहूरियत के इस्तेहकाम से स्टॉक मार्केट में मजीद तेजी आएगी। आज जबकि पंजाब हुकूमत बन गई और सिंध हुकूमत में भी चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो गए तो पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट में तेजी दिखाई दी और इन्वेस्टर्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर तमाम सियासी लोग
अपने शिकवे गिले खत्म करके पाकिस्तान की मईशत के लिए काम करेंगे। स्टॉक मार्केट में 45 करोड़ 28 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 16 अरब 49 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 207 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 114 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 24 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इजाफा ऑटोमोबाइल असेंबलर, सीमेंट और केमिकल्स के शोबे से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों के शेयर्स में हुआ। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी हो गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालती मोमिनीन खालिद जावेद खान और बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस तारीख का वाहिद फौजदारी फैसला है जो 935 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत भुट्टो केस में महज ट्रायल के शफाफ होने की हद तक जायजा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अहमद सानी नजर सानी केस में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के दीनी मदारिस को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल, दारुल उलूम कराची, जामिया नईमा कराची, जमीयत अहले हदीस, जामिया अल मुंतज़िर लाहौर, कुरान अकेडमी और दीगर को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि फैसले पर कोई भी 3 हफ्ते में तहरीरी तौर पर राय दे सकता है। समाअत के आगाज़ पर जमात इस्लामी के वकील की निशानदेही पर अदालत ने इनकी नजर सानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट करने का हुक्म दिया। आइंदा समाअत 3 हफ्ते बाद होगी। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में तुर्की ने कहा है कि गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। तुर्की ने फौरी तौर पर जंगबंदी और इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी पर जोर दिया है। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों को इमदाद फराहम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा है कि गजा कहत का शिकार है। गजा की आधी आबादी फाकों का शिकार है, जबकि सारी आबादी के पास गजा की किल्लत है। इसराइली फौज गजा शहर के मगरबी इलाके खान यूनिस और रफा शहर पर गोलाबारी कर रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 90 फ़लस्तीनी शहीद और 164 जख्मी हो गए हैं। जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस में मुज़ाहमतकारों के हमले में 15 इसराइली फौजी हलाक हो गए हैं। इसराइल ने लबनान पर भी हमले किए हैं, जिनमें हिजबुल्लाह के 2 अरकान हलाक हो गए। गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू हो गया है और इसराइली काबीना ने दोहा में मुज़ाकरात के लिए कमेटी भेजने की मंजूरी दी है। दूसरी जानिब अमरीका में हुकाम का कहना है कि वाशिंगटन में इसराइली सफारत खाने के बाहर अमरीकी फ़ज़ाइया के एक हाजिर सर्विस मुलाजिम ने गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ एहतजाजन खुदसोजी कर ली। हुकाम ने उसे मकामी हस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में आलमी इमदाद को नाकाफ़ी करार देते हुए खबरदार किया है कि रफ़ा में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन गजा में इमदादी कामों के लिए मौत का पैगाम होगा। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल से खिताब करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गुंजानाबाद शहर रफ़ा, जहाँ 15 लाख के करीब बेघर फ़लस्तीनी कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इमदाद की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रफ़ा पर इसराइल का हमला शहरियों के लिए खौफनाक होगा और यह हमला हमारे इमदादी प्रोग्राम्स के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मोहम्मद अशीतिया ने अपना इस्तीफ़ा सदर महमूद अब्बास को रमल्ला में हुकूमती इजलास के आगाज़ में पेश किया। अपने इस्तीफ़े का ऐलान करते हुए फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गजा में नस्ल कुशी, मगरबी किनारे में कार्रवाइयों और फ़लस्तीनी इलाकों में फाका कशी की सूरत हाल की वजह से ओहदा छोड़ने पर मजबूर हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि सियासी असर और रसूख के बगैर एक इंतज़ामी और सिक्योरिटी अथॉरिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगले मरहले और उसके चैलेंजेस के लिए नई हुकूमत और सियासी इंतज़ामात की ज़रूरत है जो फ़लस्तीनियों की ज़रूरियात का ख्याल रखे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के हमले के बाद से 2 साल के दौरान 31,000 यूक्रेनी फौजी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन साल 2024 फोरम से खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये नुकसान यूक्रेन के लिए एक अजीम कुर्बानी है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में हज़ारों अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। ताहम उन्होंने कहा कि जंग खत्म होने तक दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार मालूम नहीं हो सकते। ये पहला मौका है कि यूक्रेन ने रूस से जंग के आगाज़ के बाद से अब तक अपने हलाक फौजियों की तादाद की तस्दीक की है। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम ने अगस्त में यूक्रेनी फौजियों की हलाकतों की तादाद 70,000 जबकि जख्मियों की तादाद 1,20,000 बताई थी। काबिज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा इलाके के मुख्तलिफ अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद नौजवानों को बिला जवाज गिरफ्तार कर लिया है।
KMS के मुताबिक गिरफ्तार किए गए नौजवानों में तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के 3 कारकुन भी शामिल हैं। भारतीय फौज ने इख्तलाफी आवाज़ों और हक खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के जायज़ मुतालबे को दबाने के लिए कोलगाम, बांडीपुरा, गांदरबल और राजौरी अजला में पकड़ धकड़ की कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। मोदी की हिंदुत्वा हुकूमत ने मजहबी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए हजारों कश्मीरी अकीदतमंदों को जामे मस्जिद श्रीनगर में शब बारात के मौके पर इबादत करने से रोक दिया। काबिज हुकाम ने मस्जिद के दरवाजों को मकफल कर दिया। इस इकदाम के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाज किया। काबिज हुकाम ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को भी घर में नजरबंद कर दिया। बरतानिया में मुकीम एक माहिर तालीम कश्मीरी पंडित खातून प्रोफेसर नताशा कोल को मोदी हुकूमत की हिंदुत्वा पॉलिसीज के सख्त नाकिद होने की वजह से बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंचने पर भारत में दाखिल होने से रोक दिया गया और बाद अज़ां उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नताशा कोल को कांग्रेस की ज़ेर क़यादत कर्नाटक हुकूमत ने कन्वेंशन में शिरकत की दावत दी थी। बरतानवी हफ्त रोज़ा जरीदे दी इकॉनमिस्ट में शाया होने वाली एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी की तौसीक और गुजरात में 2002 के मुस्लिम कुश फसादात के मुकदमे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बरियत के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाला देते हुए भारतीय अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठाए गए हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी का जायजा के उन्वान से रिपोर्ट में अदालत उज़्मा के फैसलों पर रोशनी डाली गई है, जिससे भारतीय सुप्रीम कोर्ट की गैर जानिबदारी के बारे में सवालात खड़े हो गए हैं। पुलवामा ड्रामे पर भारत का झूठ बेनकाब अमरीकी सहाफ़ी क्रिस्टियन फेयर ने भी भारतीय झूठ की कलई खोल दी। भारत के अपने दिफाई माहिरीन ने भी भारतीय फ़ज़ाइया का झूठा और मनगढ़ंत दावा मुस्तरद कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की तस्दीक के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट ने जल्दबाजी में अपना ही तैयारा गिराया था। One F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. I will say with 100% certitude, there was no F-16 struck down. And let me tell you, I wish you shot the F-16 down. भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च 13वें रोज भी जारी है। मोदी सरकार की पुलिस के हाथों नौजवान किसान की मौत ने पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी है। WTO और कारपोरेट के अर्थी फूक दहन किए जाने चाहिए। कल सुबह 20 फुट से बड़े जो बड़े पुतले बनाएंगे उन पुतलों का दहन किया जाएगा। हाजिर सर्विस भारतीय फौजियों की बड़ी तादाद किसानों के दिल्ली चलो मार्च में जौक दर जौक शामिल होने लगी। फौजी जवान किसानों के मार्च पर मोदी सरकार की जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भारतीय मीडिया पर एहतजाजी बयान देने पर मजबूर हो गए हैं। मार्च में शामिल फौजी जवान के बयान के मुताबिक बॉर्डर पर तैनात पंजाबी फौजी दिल्ली चलो मार्च में जल्द शामिल होने का इरादा रखते हैं। बॉर्डर ਦੇ जिन्हें पंजाबी मुंडे बैठे ना आने ਨੂੰ आ जाएंगे सारे, पर बाद में की ना जो उधरों पाकिस्तान इधरों चाइना आया ना, पर बाद में बंकर ਜਿਹੜੇ ਛਡਾਣੇ ਨੇ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੜਕੇ ਜੋ ਆਰਮੀ 'ਚ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਘੁੰਮਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ 46-47 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में अक़लियतों पर मज़ालिम और इंटरनेट सर्विस की बंदिश एक आम रिवायत बन चुकी है। इंडिया में जहां भी मोदी सरकार के मज़ालिम पर आवाज़ बुलंद की जाती है, वहां फौरी तौर पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। हिंदुस्तान आलमी सतह पर इंटरनेट बंदिश में दूसरे नंबर पर है। 13 फरवरी 2024 से शुरू होने वाली किसानों के एहतजाज के दौरान भी मोदी सरकार ने अपनी रविश बरकरार रखते हुए पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट बंद कर रखा है। ओलंपियन बजरंग पूनिया ने उसे आज़ादी इजहार पर हमला करार देते हुए कहा है कि ये हिंदुस्तान की आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। पाक बहरिया की जानिब से मश्क सीज पाक के इख्तिताम पर शिमाली बहरा अरब में फायर पावर का कामयाब मुजाहरा किया गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने फायर पावर का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया की बहरी जहाज ने सतह आब से फिजा में मार करने वाले FM-90 मिसाइलों से फजाई टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया। इस मौके पर वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान नेवी बहरी सरहदों को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए हमा वक्त तैयार है। लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत और हरबी तैयारी का मुंह बोलता सबूत है।
रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर कराची में रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड हुई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार मेहमान खुसूसी थे। कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने मार्च पास्ट किया और सलामी दी। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि सिंध रेंजर्स ने दिफाई वतन के साथ दहशतगर्दों जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में भी अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कराची में अमन की बहाली के लिए नुमाया कामयाबियों पर सिंध रेंजर्स को खिराज तहसीन पेश किया। मेहमान खुसूसी ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स में इनामात भी तकसीम किए। नाज़रीन, मुल्क भर में 7 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। पहले मरहले में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला में 3 से 9 मार्च तक मुहिम चलाई जाएगी। इस कौमी मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए हर मकतबा फ़िक्र को अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान से पोलियो को पाक करने का अज़म लिए हुए हमारे 4 लाख से ज़्यादा हीरोज़ आपके घरों पे दस्तक देने आ रहे हैं। आप सबसे इल्तिमास है कि इन वर्कर्स को, जो हमारे हीरोज़ हैं और जो जान की बाजी लगाकर आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवार रहे हैं और महफूज कर रहे हैं, उनको वेलकम करें, उनकी इज्जत करें और अपनी निगरानी में तमाम 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीन पिलवाएं। कोयटा में गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। तफसील अजीजुर रहमान मरी से। कोयटा, मस्तूम, कान, मेहतरजई, कोयकटाप, लकपास और ज़ियारत में बर्फबारी, बारिश और सर्द मौसम के बावजूद इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। पोलियो फ्री बलूचिस्तान का अज़म लिए रज़ाकार फील्ड में रहे। वालिदैन से हम यही गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को, जो 1 से पैदाइश से लेके 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को वैक्सीन पिलाएं। मुहिम के दौरान 26,55,000 से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन देने का टारगेट रखा गया है। 11,446 टीमें एंटी पोलियो मुहिम में हिस्सा लेंगी। पोलियो वर्कर्स की 9,170 टीमें डोर टू डोर बच्चों को मूजी मर से बचाव के ड्राफ्ट पिलाएंगे। 958 टीमों को फिक्स्ड साइट्स और 623 को ट्रांजिट एंड एग्जिट पॉइंट्स पर तैनात किया जाएगा। मुहिम के दौरान कमसन बच्चों को विटामिन ए के ड्राफ्ट भी दिए जाएंगे। पोलियो के खात्मे के लिए मुसलसल कोशिशों की बदौलत 2021 से सूबे भर से पोलियो का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। वालिदैन से अपील है कि रज़ाकारों से ताउन करें और अपने बच्चों का पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। अजीजुर रहमान मरी, PTV न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान से कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 4 जबकि सूबाई असम्बली में 11 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान ऐवान का हिस्सा होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से असरार अहमद। बलूचिस्तान से कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 4 जबकि सूबाई असम्बली की 11 अरकान के नोटिफिकेशन जारी हो गए। बलूचिस्तान असम्बली में अक़लियती बिरादरी की नुमाइंदगी के लिए भी 3 अरकान के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं। कौमी असम्बली में PMLN से 2 जबकि पीपल्स पार्टी और JUI से एक रुकन ने नेशनल असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से किरण हैदर और अख्तर बीबी जबकि पीपल्स पार्टी से अजबल ज़हरी और JUI से आलिया कामरा नेशनल असम्बली बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। बलूचिस्तान असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और PMLN 3-3, JUI 2 जबकि BAP, ANP और नेशनल पार्टी एक नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुई। मुस्लिम लीग से राइल आमिद दुरानी चौथी जबकि डॉक्टर रुबाबा बुलेदी दूसरी मरतबा असम्बली रुकनीत का हल्फ उठाएंगी। PMLN सादिया नवाज पहली मरतबा ऐवान में पहुंचेंगी। पीपल्स पार्टी से गजाला गोला ने दूसरी मरतबा हल्फ उठाना है। दीगर 2 खवातीन में शहनाज उमरानी, रीना मजीद पहली मरतबा ऐवान की रुकन बनेंगी। JUI से शाहिदा रऊफ दूसरी जबकि सफिया खातून पहली मरतबा बलूचिस्तान असम्बली में मखसूस नशिस्त पर हल्फ लेंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के फराजीम शाह भी दूसरी मरतबा बलूचिस्तान असम्बली का हिस्सा बनेंगी। उम्मे कलसूम नेशनल पार्टी और सलमा बीबी ANP की तरफ से रुकनीत का हल्फ उठाकर ऐवान में अपनी जमात की नुमाइंदगी करेंगी। अक़लियती बिरादरी की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी से संजय कुमार, मुस्लिम लीग से पैट्रिक मसीह जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के रवि पहुजा ऐवान का हिस्सा बनेंगे। इसरार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ऐवान में तकरीर सुनकर लगा कि
का अवाम के नब्ज पर हाथ है और अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम होमवर्क मुकम्मल किया गया है। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अपोजिशन ने इंतखाबी अमल का बाइकआउट करके ऐवान का तकद्दुस मजरू किया है। एहतजाज करना अपोजिशन का हक था, लेकिन मरियम नवाज ने उन्हें ऐवान में बुलाने के लिए खैर सगाली का मुजाहरा किया। आइन की आर्टिकल 130 कहती है कि इलेक्शन से कबल कोई तकरीर, बहस, मुबासा नहीं हो सकता। तो इस पर अगर मेरे दोस्तों ने अपोजिशन के बाइकआउट किया है तो मेरा ये ख्याल है कि आइन की एक आर्टिकल का बाइकआउट हुआ है और मैंने इसके लिए कोशिश की कि मैं उनके पास बार बार भेजूं कि जब तकरीर इलेक्शन हो जाएगा तो जितना मौका मैडम चीफ मिनिस्टर के पास होगा, आई इंश्योर कि उतना ही मौका कंटेस्टिंग अपोजिशन के कैंडिडेट के पास होगा। बट समहाउ ये उनका फैसला था, लेकिन मैडम ने बड़ा अच्छा किया जो जेस्चर उन्होंने दिया, और हम अपनी तौर पे कोशिश करेंगे कि आइल के दोनों तरफ आइन के ऐन मुताबिक किसी की हक तलफी हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब में तरक्की के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला इंतखाब से नई तारीख रकम हुई है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत वतन अजीज़ को तरक्की की राह पर गामज़न करेगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज की क़यादत में सूबे में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि सूबे में आम आदमी को दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की जा चुकी है। मुस्लिम लीग नून तरक्याती अमल में अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है। मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत करते हुए नैब को अगले हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिया है। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की। पाकिस्तान टेलीविजन के साबिक कंट्रोलर न्यूज़ मोहम्मद रफीक गुराया की याद में ताज़ियती रेफरेंस इस्लामाबाद में हुआ। तकरीब में पाकिस्तान टेलीविजन शोबा खबर के मौजूदा और साबिक डायरेक्टर्स और सीनियर्स शरीक हुए। इस मौके पर मोहम्मद रफीक गुराया मरहूम के इदारे और पाकिस्तान के लिए खिदमात को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। शुरका ने कहा कि रफीक गुराया एक बेहतरीन ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपनी पेशा वराना जिंदगी में बहुत से अफराद को तरबियत फराहम की। शुरका ने कहा कि रफीक गुराया ने इदारे में प्रोफेशनलिज्म की आला मिसालें कायम की और प्रोड्यूसर्स और रिपोर्टर्स को ज़्यादा बाइख्तियार बनाया। तकरीब के आखिर में मरहूम की मगफिरत और इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी और दुआ की गई। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि अकीदा ख़त्म नबूवत पर तमाम लोग मुत्तफिक हैं। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि हमें दस्तूर पर अमल पैरा होना है, मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हर शहरी आइन और कानून की नज़र में बराबर है। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बादल बरसने का सिलसिला फिर से शुरू, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और मरी में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। सदफ अफजल की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी पंजाब, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। बलोचिस्तान के शहर कल्लात और गिरदोनवा में गुज़िश्ता रात से ही वक्फे से मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के शहर हंगू और गिरदोनवा में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला जो है वो आइंदा 2 रोज़ तक बलोचिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाके मरी, गलियात और इसके गिरदोनवा में भी बर्फबारी का इम्कान है। पोठौर के इलाके हैं उनमें बारिश के बायस पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा फसलों के ऊपर
اور کسی حد تک جو واٹر ریکوائرمنٹس ہیں فصلوں کی وہ پوری ہونے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مری گلیات، ناران کاغان، ہنزا اسکردو اور کشمیر میں برف باری سے گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا سیاحوں کو بہت محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش اور برف باری سے موسم شدید سرد ہو گیا ہے۔ بھاری مشینری کے ساتھ برف کو ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیل عزیز وری کی اس رپورٹ میں۔ اتوار کی رات سے کوئٹہ سمیت صوبے کے شمالی اضلاع کان بہترزئی، کویک ٹاپ، زیارت، کلات اور مستن کے پہاڑی علاقوں میں برف باری اور بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور موسم میں خنکی بڑھ گئی۔ موسمیات کی جانب سے الرٹ پیشن گوئی جاری کرنے کے باعث شاہراہوں پر ٹریفک کو رواں رکھنے کے لیے محکمہ پی ڈی ایم میں بلوچستان اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے انتظامات پہلے سے کر رکھے تھے اور بھاری مشینری کے ساتھ برف کو ہٹایا جا رہا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں صوبے کے شمالی علاقوں میں برف باری جبکہ شمال مغربی علاقوں میں بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے، جبکہ محکمہ پی ڈی ایم میں بلوچستان نے غیر ضروری سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ عزیز الرحمان مری، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، جنوبی پنجاب، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آندھی، تیز ہواؤں، جھکڑ اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران بلوچستان کے شمالی، جنوبی مغربی اضلاع میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے، جبکہ خطہ پوٹھوہار سمیت بالائی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی، تو سب سے پہلے لیہ کی بات کریں گے، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کالام میں -8، استور -6، سکردو -5، جبکہ مالم جبہ میں بھی -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کی درجہ حرارت، سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور 9، کراچی 16، پشاور 6 اور کوئٹہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ قومی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے ٹورنامنٹس میں شرکت کر کے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا۔ اسلام آباد میں پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم سے ملاقات میں صدر مملکت نے کہا کہ حالیہ برسوں میں پاکستان میں بلائنڈ کرکٹ نے خصوصی توجہ اور پہچان حاصل کی اور دنیا کو خصوصی افراد کی شاندار صلاحیتوں سے متعارف کروایا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ملک میں کرکٹ مقابلوں کے فروغ کے لیے پاکستان بلائنڈ کرکٹ بورڈ کی کارکردگی کو سراہا۔ قومی بلائنڈ ٹیم کے ارکان نے حوصلہ افزائی پر صدر مملکت اور بیگم سمینہ الوی کا شکریہ ادا کیا۔ ٹیم مینجمنٹ نے صدر مملکت کو ٹیم کی حالیہ کارکردگی کے بارے میں بریف کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ کچھ ہی دیر میں آپ سے ملاقات ہوگی ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رہیے، آپ کا شکریہ۔